بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنے نئے لیکچر میں اپنے چینل اسلامیہ اسٹڈی میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ سورہ حشر کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور جانیں گے اور اس کے انر کے سوالات کو دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے تعارف لکھیں، سب سے پہلے تعارف لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ حشر قرآن مجید کی 59ویں صورت ہے، 59 پہ صورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ ایم سی کیوز ہے، ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی میں۔ یہ قرآن مجید کی 28ویں پارے میں ہے اور یہ بھی ایم سی کیوز ہے۔ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ مدنی ہے یا مکی ہے یا مقام نزول اس کا کیا ہے، یہ سارا یہ کوشچن بنے گا۔ اس میں 3 رکوع اور 24 آیات ہیں۔ اس کے رکوع اور آیات تحریر کرنے سورہ حشر کے، یہ دیکھیں میں نے اوپر چھوٹا چھوٹا لکھا ہے، یا اس کی یہ ہیڈنگ دیں گے اگر آپ تعارف لکھیں گے، اور مقام نزول اس کی ہیڈنگ دیں گے، رکوع اور آیات لکھیں گے۔ یہ تعارف اور یا ہیڈنگ دونوں آپ کر سکتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یعنی اس کے نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ صورت بھی مسبحات میں شامل ہے۔ مسبحات کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں صورتیں، اس کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا نام اس کی دوسری آیت هو الذی سے لے کر لأول الحشر یہاں تک سے ماخوذ ہے۔ حشر کا معنی کیا ہے؟ یہ ہو گیا شارٹ کویسچن۔ منتشر افراد کو اکٹھا کرنا۔ یہاں اس سے مراد بنو نذیر کے تمام افراد کی مدینہ منوری سے جلا وطنی ہے، کیونکہ ان کے تمام افراد کو جمع کیا گیا اور مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، جس کے لیے جلاؤن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جس کا معنی بال بچوں میں جلا وطن کرنا ہے۔ اب جلاؤن کا لفظ کا کیا معنی ہے، یا جلاؤن لفظ کا معنی سورہ حشر کے حساب سے لکھیں یا جلاؤن کا معنی لکھیں، یہ کیا ہوا؟ شارٹ کویسچن ہوا، ٹھیک ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ یہ سورہ مبارکہ بنو نذیر کے متعلق نازل ہوئی۔ سورہ حشر کس قبیلے کے متعلق نازل ہوئی؟ شارٹ کویسچن، نہایت امپورٹنٹ۔ پہلا پیراگراف ہمیشہ کی طرح اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ حشر قبیلہ بنو نذیر کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی، صحیح بخاری میں۔ اب یہ ایک حدیث لکھیں، اس کے جو نزول کے بارے میں ہے نا، یہ آپ لکھیں گے۔ پس منظر یہ اس کی ہیڈنگ ہوگی۔ نیکسٹ تعارف جو لکھے اوپر میں نے لکھا ہے وہ بہت مختصر تعارف ہوگا۔ یہ جو میں نے لکھا ہے یہ بہت مختصر تعارف ہوگا، یہ چونکہ زیادہ لینتھی ہے تو آپ نے اس کو مختصر لکھنا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین جب مکہ مکرمہ میں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آباد ہوئے تو وہاں یہودیوں کے 3 قبائل بنو قریظہ، بنو قنیقہ اور بنو نذیر یہاں آباد تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میثاق مدینہ کے تحت مذہبی، معاشرتی اور معاشی آزادی عطا کی اور معاشرے میں مقام عطا فرمایا۔ یہودی اس معاملے کا پاس نہ رکھ سکے اور بالآخر یہودیوں کو مدینہ بدر کر دیا گیا۔ غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی، جس کے بعد بنو نذیر کے سردار کعب بن اشرف نے، بنو نذیر کے سردار کا نام ڈیش تھا۔ یہ انر کے کویسچن ہیں، اس بار انر میں سے کویسچن آئیں گے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کعب بن اشرف نے مکہ مکرمہ جا کر کفار و مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ اس کے بعد غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان کے بعد یہودیوں کے حوصلے بلند ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینے جیسا مذموم ارادہ کر لیا۔ چنانچہ بنو نذیر کے خلاف فیصلہ کن اقدام لازم ہو گیا۔ مسلمانوں نے 15 دن تک بنو نذیر کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر انہوں نے اس شرط پر صلح کر لی کہ اپنے ہتھیار یہی چھوڑ جائیں گے، جتنا سامان اٹھا سکتے ہیں لے جائیں گے۔ اسی طرح یہ لوگ خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ اس کی فضیلت نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھے اور 3 بار سورہ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت مانگنے کے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ جو شام تک یہی کام کرتے ہیں، اگر وہ اسی دن فوت ہو جائے تو اس کی شہادت کی موت ہوگی۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کے بہت زیادہ فائدے ہیں، وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اچھے اس کے بہت اور مجرب ہے وہ، یہ نہیں کہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا اثر دیر سے فوری اس کا اثر ہوتا ہے، تبھی تک شام تک اگر انسان کی موت ہو جائے تو اس کی شہادت کی موت ہوگی۔ آگے ہے مرکزی موضوع۔
जी, मरकज़ी मौज़ू में है सूरह हशर में यहूद मदीना के अंजाम, माल की तकसीम, मुनाफ़िकीन की मुनाफ़कत और अहले ईमान की सिफ़ात का ज़िक्र बयान किया गया है। ठीक है, आगे हमारे पेज पे है बुनियादी मज़ामीन। बुनियादी मज़ामीन के बारे में हम देखते हैं। कुदरत कामला का बयान, ये आप इसकी हेडिंग लिखेंगे पहली लाइन की। सूरह हशर के आगाज़ में अल्लाह ताला की तस्वीर कुदरत कामला का बयान है। सेकंड आप हेडिंग लिखेंगे अखलाकी बुराइयों की मजम्मत। अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के सदियों से आबाद कबाइल को घरों से निकाल दिया, जिन्हें गुमान भी नहीं था कि ऐसा होगा। इस सूरत में बाज़ अखलाकी बुराइयों की मजम्मत और इनसे बचने की तलकीन की गई है। मसलन बुखल से मुतल्लिक फरमाया गया कि जिससे बुखल से बचा लिया गया वो कामयाब हो गया। नेक्स्ट है सूरह हशर में मुसलमानों के लिए नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पैरवी करना लाजिम है। इसकी हेडिंग होगी आपकी पैरवी। और वाज़ेह किया गया है कि नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ का हुक्म दे इसको बजा लें, जिस चीज़ से मना करें इससे रुक जाएं। आगे है यहाँ पे बनी नज़ीर के अमवाल के हवाले से अहकाम। ये देखें, छोटा सा नज़र आपको आ जाएगा, ज़रा जूम भी करेंगे तब भी। सूरह हशर में ग़ज़वा बनी नज़ीर से हासिल होने वाले अमवाल के हवाले से अहकाम ज़िक्र किए गए हैं। कबीला बनी नज़ीर के अमवाल अल्लाह ताला ने अपने रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर फ़े अता किए थे। माल फ़े से मुराद क्या है? माल फ़े से मुराद वो माल है जो मुसलमानों को मैदान जंग में बगैर लड़ाई के हासिल हुआ। माल फ़े खालिस अल्लाह ताला के रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए इसमें से मुख्तस करते, फिर जो बचता है इसे जहाद की तैयारी के लिए घोड़े और हथियारों में खर्च करते थे। जामिया तिरमिज़ी में 1719 पे ये हदीस है मौजूद है। सूरह हशर में इस बात की तरफ भी इशारा किया गया है कि माल की गर्दिश और उसकी मुनसवाना तकसीम सिर्फ माल गनीमत और माल फ़े ही में नहीं बल्कि पूरे निज़ाम हयात में रखी गई है, ताकि मुल्की वसाइल चंद बाअसर अफराद के हाथों ही में ना सिमट जाएँ। इसी आयत में इस बात की वजाहत हुई है कि सिर्फ माली निज़ाम ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में नबी करीम की पैरवी करो, इस तरह तुम्हारी फलाह है। माल फ़े की तकसीम के हवाले से माल फ़े की तकसीम, ये इसकी आप हेडिंग लिखेंगे। अगर आप ये को बुनियादी मज़ामीन आ जाते हैं तो ये माल की तकसीम, माल की जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है उसको आपने साइड पे लिख लेना है, ताकि जब ये आप बुनियादी मज़ामीन लिखें तो हेडिंग के साथ लिखें। माल फ़े की तकसीम के हवाले से फ़ुक़रा, मुहाजिरीन, अंसार और आम मुसलमानों की चंद सिफ़ात बयान करके इनके इस्तेहकाक की वजाहत फरमाई गई है। मुहाजिरीन की तारीफ़ करते हुए इरशाद फरमाया है कि वो हर वक्त अल्लाह ताला के फजल और रज़ा तलब करते रहते हैं। अल्लाह ताला इसके रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार हैं, सच्चे हैं। इंसार की तारीफ़ करते हुए इरशाद फरमाया कि ये साबित कदम है। आगे है अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे, अल्लाह ताला लोग महाजिरीन से मोहब्बत करते हैं, सखी हैं, अपनी ज़ात पर महाजिरीन को तरजीह देते हैं। आगे है साहबा कराम की सिफ़ात। साहबा कराम जो हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की तारीफ़ करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये कितने ही तंग दस्त और ज़रूरतमंद क्यों ना हो, हमेशा दूसरों को खुद पर तरजीह देते हैं और हर मामले में इसार से काम रहते हैं। आगे है मुहाजिरीन अंसार के अलावा क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमान अपना दामन हमेशा अल्लाह ताला की बारगाह में फैलाते हैं और ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं और अहले ईमान के साथ बुग़्ज़ रखने से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। आगे हमारे पास पैराग्राफ, इसके बाद मुनाफ़िकीन की अलामात लिखेंगे आप। इसके बाद मुनाफ़िकीन की चंद अलामात बयान हुई हैं। ये लोग दुश्मनान इस्लाम से हमदर्दियाँ रखते हैं और यकीन दिलाते हैं कि अगर तुम्हें मदीना मुनव्वरा से निकाला गया तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे और अगर तुम जंग की गई तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। हालांकि ये दोनों नासमझ झूठे हैं। हकीकत में ये आपस में हमदर्द नहीं, इनका दिल जुदा जुदा है। ये खुले मैदान में आने से भी डरते हैं और इनकी मिसाल शैतान की सी है, जो पहले इंसान को कहता है इनकार कर, फिर जब वो इनकार कर देता है शैतान कहता है मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। सूरह हशर के आखिर में अहले ईमान को तकवा इख्तियार करने, अहले ईमान की तलकीन, ठीक है, ये इसकी हेडिंग होगी। सूरह हशर के आखिर में अहले ईमान को तकवा इख्तियार करने, आखिरत की तैयारी करने, कुरान मजीद में गौर व फिक्र करने और नसीहतों पर अमल करने का हुक्म दिया गया है। ये सारा जो आप लिखेंगे ना, ये सारा आप हेडिंग के साथ लिखेंगे। देखें जगह जगह मैंने पेंसिल से, लेड पेंसिल से हेडिंग लिखी है, ये आप सारा लिखेंगे हेडिंग के साथ, ठीक है। और ये हेडिंग के साथ मज़ामीन जब आप ऐड करेंगे अलग से, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है लॉन्ग, तो इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो अब इसका तर्जुमा करते हैं, तो तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं। तर्जुमा जो हमारा है वो 18 नंबर आयत से 24 नंबर आयत तक है। तो हम इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमिनो, ईमान वालो, तकू, डरो, अल्लाह ताला से, वलतंजुर, और चाहिए कि देखे, नफ्सुन, हर एक, माँ कद्दमत, क्या भेजा है उसने या जो भेजा है उसने, लिगदिन, कल के लिए, वत्तकू, डरो, अल्लाह से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, खबीरुन, खबर रखने वाला है, बिमा तामलून, जो तुम करते हो। ठीक है, पढ़ते हैं इसका बामुहावरा तर्जुमा। ए लोगों, अल्लाह से डरो और चाहिए कि हर शख्स हर शख्स देखता रहे कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए आगे क्या भेजा है। और अल्लाह ताला की नाफरमानी से डरो, बेशक अल्लाह ताला इससे खूब बाखबर है जो तुम करते हो। ठीक है, वला तकूनो, और ना हो जाओ, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, नसुल्लाहु, भुला दिया उन्होंने अल्लाह ताला को, वानसाहुम, और भुला दिया उनको अल्लाह ताला ने, अनफुसहुम, उनकी जानों को, यानी उन्होंने अपने आप से भुला दिया, उलाइका हुमुल फासिकून, यही वो लोग हैं नाफरमान। और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए हैं, तो अल्लाह ताला ने उन्हें खुद अपने आप से गाफिल कर दिया है, यही लोग नाफरमान हैं। ला यस्तवी, नहीं बराबर हो सकते, असहाबुन नार, रहने वाले आग के, व असहाबुल जन्ना, और रहने वाले जन्नत के, व असहाबुल जन्ना हुमुल फाइजून, और रहने वाले जन्नत के कामयाब, वही कामयाब हैं। जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते, जन्नत वाले ही कामयाब हैं। अगली आयत है, लो अंजलना, अगर नाजिल कर देते हम हाज़िल कुरानी, इस कुरान को, ला जबलिन, पहाड़ पर, लरायताहु, अलबत्ता देखते तुम उसको, खाशियतुन, रेजा रेजा, पाश पाश, मुतसद्दियन, डर के मारे, मिन खशियतिल्लाहि, अल्लाह ताला के डर से, ये मुतसद्दियन, झुका हुआ, मिन खशियतिल्लाहि, अल्लाह ताला के डर से, वतिल का, और ये अमसालु, मिसाल है, नज़रिबुहा, हम इसको बयान करते हैं, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि वो यतफक्करून, फिक्र करें। एक एक वर्ड का अलग तर्जुमा बताने का मकसद ये है कि आप जब भी इसको याद करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब ये लफ्ज़ आएगा तो आपको आसानी से बामुहावरा तर्जुमा करने में आसानी होगी। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो यकीनन इसे अल्लाह ताला के खौफ से वो झुक कर पाश पाश होते देखते तुम उसको, और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। आगे हमारी आखिरी आयत हैं जो सुबह और शाम पढ़ने के लिए कहा गया है। वल्लाहु, वही अल्लाह, लज़ी, जो ज़ात पाक, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं कोई माबूद मगर वही, आलिमुल गैब, गैब को जानता है, व शहादतु, और ज़ाहिर को, व रहमान रहीम, वो रहमान है और रहम फरमाने वाला है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो पोशीदा और ज़ाहिर को जानने वाला है, और वो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। वल्लाहुल्लज़ी, वही ज़ात पाक, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं कोई माबूद मगर वही, अल मालिकुल कुद्दूस, मालिक है, पाक है, सलामुन, सालिम, अल मोमिनु, अमन बख्शने वाला, अल मुहैमिनु, निगहबान, अल अजीज़ु, गालिब, जब्बारू, बड़ी ताकत वाला, मुतकब्बिरुन, बेहद बुराई वाला, सुबहान अल्लाह, पाक है अल्लाह ताला, अम्मा युशरिकून, जिस चीज़ के बारे में तुम वो शरीक ठहराते हैं। वही अल्लाह ताला है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह है, हर ऐब से पाक ज़ात, हर नुक्स से सालिम, अमन बख्शने वाला, सबका निगहबान, बहुत बड़ा गलबा वाला, बड़ी ताकत वाला, अलमुतकब्बिर, बेहद बुराई वाला, पाक है अल्लाह ताला, अम्मा युशरिकून, उस चीज़ से जिसको वो शरीक ठहराते हैं। वल्लाहु, वही अल्लाह, खालिकुन, खालिक है, बनाने वाला है, अलबारिउ, वजूद में लाने वाला है, मुसव्विरुन, तस्वीर, खालिक वजूद में लाने वाला है, अलबारी, बनाने वाला है, मुसव्विरुन, तस्वीर, लहू, उसके लिए, अस्माउन, नाम है, अलहुस्ना, अच्छे प्यारे, युसब्बिहु, तस्बीह बयान करते हैं, जो तस्बीह बयान करते हैं, लहू, उसी के लिए, माफिस समावाती व अर्ज़ी, जो कुछ ज़मीन में है और आसमानों में है, वो लजीज़ुल हकीम, वो गालिब है, हिकमत वाला है। वही अल्लाह है जो पैदा फरमाने वाला है, वजूद में लाने वाला है, सूरत बनाने वाला है, उसी के लिए तमाम अच्छे नाम हैं, जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में हैं वो सब इसकी तस्बीह करते हैं, और वही बड़ा गालिब और नहायत हिकमत वाला है। वो है, पहले तो ये है ज़खीरा अल्फाज, ये आपने ज़रूर याद करने हैं हर एक्सरसाइज के, जिसमें भी ये है इसमें से पेपर आता है। ठीक है, आगे हम मश्क, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हश्र का क्या मायने है? मुंतशिर अफराद को इकट्ठा करना हश्र का मायने है। ठीक है, काब बिन अशरफ सरदार था बनु नुज़ैर का, ये मैंने आपको कहा था ना, ये याद करना है आपने। आगे है, मुसलमानों ने बनु नुज़ैर का मुहासरा किया। ठीक है,
15 दिन। बनु नुज़ैर के मुतल्लिक नाजिल हुई है सूरह हश्र। बनु नुज़ैर के मुतल्लिक कौन सी सूरत नाजिल हुई है, इस तरह ये सवाल आ जाता है। आगे है बनु नुज़ैर हिजरत के बकर के बाद हुए खैबर में। खैबर में चले गए थे ना, जब उनको कहा गया था कि हथियार यहीं छोड़ जाओ और अपना जितना सामान हो सकता है ले जाओ, तो वो खैबर में जाकर आबाद हो गए थे। मुख्तसर जवाब दें, माल फै से क्या मुराद है? जो जहाद में किसी भी बगैर वजह के बच जाता है उसे माल फे कहते हैं। देखें, माल फे से मुराद वो माल है जो मुसलमानों को मैदान जंग में बगैर किसी लड़ाई के हासिल हो। माल फे खालिस अल्लाह ताला के और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे आप सिर्फ। ठीक है, सही है। आगे लिखेंगे मिसाक़ मदीना के तहत यहूदियों को क्या फ़ायदा मिला। मिसाक़ मदीना के तहत यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में यहाँ से है, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा आबाद हुई, यहाँ से लेकर बिल आखिर यहूदियों को मदीना बदर कर दिया गया। यहाँ तक आप इसका दूसरे का आंसर लिखेंगे। ये देखें मैंने लिखा हुआ है। आगे हमारे थर्ड पे है, सूरह हशर में इंसार की कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं। ये देखें यहाँ पर, ये जो मैंने अलग से लिखा है यहाँ से लिखेंगे आप। इंसार की तारीफ़ करते हुए इरशाद फरमाया, यहाँ से महाजिरीन को तरजीह देते हैं। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। ये एक लाइन का आंसर है। हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरह हशर में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की तारीफ़ कैसे की गई है। ठीक है, ये भी इसके आगे ही है। ये देखें, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की तारीफ़ करते हुए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप और लास्ट तक नहीं, अगले लाइन तक लिखेंगे। यहाँ तक जहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो रही है उससे एक और लाइन ऐड करके सार से काम लेते हैं। यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। ठीक है, हिजरत मदीना के वक्त मदीना मुनव्वरा में यहूद के कौन कौन से कबीले आबाद थे? कौन कौन से थे? बनु कुरैज़ा थे, बनु नज़ीर और बनु कनैका। यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा हुआ भी है, आप भी देख लें और आप भी इसी तरह बजाय इसको ढूंढने के यहाँ पर लिख लें। शॉर्ट क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो आप इसको ऐड लिख कर देंगे कि हिजरत मदीना के वक्त मदीना मुनव्वरा में यहूद का बनु कुरैज़ा, बनु नुज़ैर और बनु कनैका आबाद थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लॉन्ग क्वेश्चन। पहले है अल्फाज माना, ठीक है, फिर है लॉन्ग क्वेश्चन। अला जबलिन किसी पहाड़ पर, अला का मतलब होता है पर, जबलिन किसी पहाड़, अलगईबिन पोशीदा, मुतसद्दियन बाज पाश होने वाला, अलमोहिमीनु निगेबान, शहादतु जाहिर। लिखा हुआ है मैंने। दर्जी कुरानी आयत का बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। पहले भी मैंने आपको करवा दिया, लेकिन फिर से मैं आपको करवा दूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इसे पीछे करें वीडियो को और इसको चेक कर लें। तो इसमें वाह मुहावरा और लफ्ज़ी दोनों तर्जुमा मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट है तफसीली जवाब दें। सूरह हशर के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। बुनियादी मज़ामीन को हेडिंग के साथ आपने ऐड करना है। ये सारा मैंने आपको दोबारा से बता दी हूँ, ये सारा आपने हेडिंग के साथ ऐड करना है। ठीक है, सारा, ठीक है, ये सारा आपने हेडिंग के साथ ऐड करना है। तो आज का हमारा ये सबक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आगे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पेपर्स में आना हो। आपको आंसर क्वेश्चन और ये जो इसके ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, ये आपने बड़े अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इसी में से पेपर्स आता है। ठीक है, सारी बुकें आपने याद करनी, सही है, और तर्जुमा भी आपने बहुत अच्छे से याद करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आई, या कमेंट में जाकर यस लिख दें, उसी से मुझे पता लगेगा, वैसे नहीं पता लगेगा। और अगर इसमें कोई कमी पेशी है तब भी मुझे बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट को मैं इम्प्रूव करके आपके पास लेकर आऊँ। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसे इनके इनर के क्वेश्चंस का नहीं पता, ठीक है, ताकि उनको इसका पता लग जाए, उनको पढ़ने में आसानी हो। सूरह हशर इसकी आखिरी आयत है, आखिरी सूरत है, तो आपने इस सूरत का एक तर्जुमा जो है 18 से लेकर 24 तक है, वो बहुत अच्छे से आपने याद करना है, जैसा कि मैंने करवाया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करने से ऐसा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।